Agriculture in Bihar has always played a crucial role in shaping its economy. It generates nearly 42% of the state domestic product and engages about 81% of the state's workforce. This figure is much higher than the national average of 66%. Although endowed with fertile soil, adequate rainfall and good groundwater availability, Bihar has failed to utilize its agricultural potential to its optimum. Agriculture has seldom benefited the masses involved and has rarely boosted the profits in the economy. Heavy stress on labor-oriented, intensive agriculture has been the main drawback of the system. Coupled with the lack of modern agricultural practices and technology, and the government's snail-paced approach in adopting new economic measures, and you have a society reeling under huge agrarian crisis. With its agricultural productivity being one of the lowest in the country, Bihar is headed towards dire rural poverty, low nutrition levels, and large-scale migration of labor. A major factor affecting the overall agricultural output of Bihar has been the extreme environmental conditions, often culminating in natural disasters. While southern Bihar is prone to drought, northern Bihar has had to bear the brunt of floods for decades now. Almost 17% of India's total flood-affected land lies in North Bihar, affecting about 76% of the population in the area annually. While in most parts of India, the monsoon is considered to be a sign of prosperity, ushering in a good harvest of crop, the same in Bihar spells a recurring doom year after year. Torrential rains during monsoons cause flooding of the plains of Bihar. The process is facilitated by the embankments that have been the landmarks of the state since independence. The ruthless floods destroy everything in their wake. Ruined homes, damaged crops, land overflowing with water have become common sights in Bihar. देखिए हमारा तो प्लेन लैंड है पूरा और वो ज़मीन बनी है हिमालय से आने वाले सेडिमेंट से। वो सेडिमेंट बहुत दिनों से आ रहे हैं और बहुत दिनों तक सदियों तक आते रहेंगे। ये कि उसको हैंडल करना, बाढ़ तो अकेले पानी से नहीं आती, उसके सेडिमेंट्स की वजह से भी आती है। जो नदियाँ धारा बदलती हैं वो भी सेडिमेंट्स की वजह से बदलती हैं। अब उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एम्बैंकमेंट्स बनाए नदियों के किनारे, और नदियों के किनारे एम्बैंकमेंट बनाए तो उसकी वजह से नदियों का लेवल ऊपर चला गया, ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स पैदा हुई। स्लूइस जो हैं वो एम्बैंकमेंट्स में बनाए वो काम नहीं करते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ का स्पिलिंग होता है बाहर, सीपेज से वाटर लॉगिंग होता है, ड्रेनेज पूरा चौपट होता है। तो जो बाढ़ पहले 2.5 दिन के लिए आती थी अब वो 2.5 महीने के लिए आती। इतना फ़र्क पड़ा है वहाँ पर हमारे मॉडर्न फ्लड कंट्रोल इंटरवेंशन से। The government's solution has been to implement even bigger projects and build more embankments, canals and dams to control the rivers. In the last 5 decades, since 1954, over 3,000 kilometers of embankments have been built in Bihar. But these structures have only caused more havoc, obstructing and diverting the flow of the rivers and increasing the flooding propensity by 2.5 times in the same period. नदी का जो मूल धर्म है वो पूरे क्षेत्र से पानी को अपने अंदर समेटना है। उसके सामने नदी किनारे आपने दीवारें खड़ी करनी तो पानी तो बाहर रुका। जो पानी स्वाभाविक रूप से नदी में आ जाता था वो तो बाहर रुक गया। उसके अलावा नदी का लेवल जो 15 फुट या 20 फुट जितना भी हो आपने तटबंध बना करके किया, वो तटबंधों से होकर के सीप करता है।
वो पानी तो बाहर जाता है। तो बाहर एक तो वो पानी टिका हुआ है जो कि नदी में आ नहीं पाता, और दूसरे नदी के अंदर का वो पानी जो कि मिट्टी के बने हुए, मिट्टी या रेत के बने हुए तटबंधों से बाहर सीप करता है, तो वहाँ वाटर लॉगिंग होती है। वो एक कारण है उसका। फिर सिर्फ तटबंध तो नहीं बनाया हमने, बहुत सी नहरें बनाई बिहार में। कम से कम उत्तर वाले इलाके में तो 10,000 किलोमीटर के आसपास की नहरें होंगी। फिर सड़कें बनी हैं, फिर रेलवे लाइन है, ऐसे बहुत से। और अब तो फ्लड प्लेन्स का एनक्रोचमेंट है, उसमें तो बस्तियाँ बन रही हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं। तो इन सब ने पानी के रास्ते को रोका है। तो पानी तो पहली बात ये है कि हम कोई भी कंट्रोल करके पानी को बरसने से और उस इलाके में पानी को आने से नहीं रोक सकते। वो आएगा, अब वो जाएगा कहाँ, ये हम लोगों ने कभी स्थिर नहीं किया और उसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो जो पानी जा नहीं पाता है, चाहे वो नदी के लेवल के ऊपर के उठने की वजह से हो, चाहे सड़क या तटबंध में जो वाटरवे जिसको हम कहते हैं कि उसमें कल्वर्ट की डायमेंशंस उतनी नहीं हैं, उसकी वजह से न जा पाता हो, तो वहाँ रुकता। और फिर प्लेन लैंड है, यानी मैंने बताया कि 4 इंच टू ए माइल, 4 इंचेस टू ए माइल का स्लोप है। तो अगर आपने कहीं 1 फुट पानी इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर दिया, उसकी हाइट बढ़ा दी, तो वो 3 मील पीछे की तरफ अपने आप चला जाएगा। दैट्स द रीज़न फॉर वाटर लॉगिंग। Out of the 54 lakh hectares of land in northern Bihar, around 16% remains permanently waterlogged. Surplus money is continuously generated in construction of more embankments and maintenance of the existing ones. But the government takes no measure to reclaim acres of land submerged in water. नवजागृति के लोग हमारे गांव में आए थे और उन्होंने जल निकास की बात कही, तो हम लोगों ने इसको बहुत खुशी इस बात को समझा कि जल निकास तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जल निकास के लिए हम लोग इस नहर के बारे में इन लोगों से कहा। Navjagriti Samiti was started at Saran district in Bihar as a small non-government organization to solve the issues of flood and waterlogging. The organization has done significant work in draining out water in flood-affected areas and helped reclaim land that was previously engulfed in water. तो फिर हम लोगों ने 91 में एक जल जमाव विरोधी संघर्ष समिति का निर्माण किया और उसी के बैनर तले हम लोगों ने जुलूस धरना प्रदर्शन किया। बहुत सारे रैलियाँ हुआ इस संगठन के माध्यम से और बहुत से लोग किसान लोग हम लोगों के साथ जुड़े भी। लेकिन इसी बीच हम लोगों के मुलाकात दिनेश कुमार मिश्र जी और इस विषय पर काम करने वाले भी मेधा पाटकर जी, विजय कुमार जी जैसे लोगों से मीटिंग के दौरान हुई तो उन्होंने बोला कि इस तरह के काम करते करते तुम लोग तो मर जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा काम करो जो कि लोगों को दिखाई पड़े। किसानों से बात हुई तो लोगों ने कहा कि नहीं, एक केवल उसमें से अगर ड्रेनेज कर दिया जाए, उसका पानी अगर निकाल दिया जाए, चौर का पानी निकल जाए, तो उससे बहुत सारे समस्या का समाधान हमारा हो सकता है और उससे खेती और हमारी होगी। उसके लिए हम लोग चौर में नाला बनवाने का काम और कल्वर्ट बनवाने का काम, चूँकि बीच बीच में कुछ रास्ता भी खेत में जाने के लिए भी रास्ता था और पानी भरने के वजह से खेती नहीं कर पाते थे। पानी निकल जाने से खेती किए, उससे उनके यहाँ गेहूँ पैदा हुआ, उनके यहाँ ये मूंग पैदा हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, बहुत आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो पहले क्या करते थे? पहले लोग अब बाहर चले जाते थे, जब काम नहीं है, खेत में पानी भरा हुआ है, तो लोग अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चले जाते थे। Navjagriti aspires to raise the living standards of the people in the region and reverse the trend of migration by providing them with good and fertile land for cultivation. इस ड्रेनेज के माध्यम से इधर के इलाकों में मैंने जो गांव है, यहाँ जो 8-10 गांव के बीच जो ये लच्छी कैद का चौर है, इसका कुछ हिस्सा जो है उसमें 70% जो लगभग हम लोग घर का जो डोर टू डोर सर्वे किए हैं उसमें देखे कि प्लान रुका है। उस हर घर के लोग अब घर में रह रहे हैं, अपना यहाँ के ही रोजगार में लिप्त हो रहे हैं और उनका एक आमदनी भी बढ़ रहा है। Various efforts are underway to adapt the villagers to the problems of waterlogging.
Instead of migrating to cities for wage labor, they are now actively taking part in various training programs to reclaim their land and make them suitable for farming. The Samiti is encouraging farmers to revive agriculture in the reclaimed parts by distributing high-yielding varieties of seeds and bio-organic fertilizers. नवजागृति के लोग आए बताए कि हम आपको आधार बीज देंगे और यह बीज आपको 5-6 साल तक आप किसान क्लब को दीजिएगा, और वे लोग बीज दिए, खेती करवाए और उसी से हम लोग धान लगाए हुए हैं। जब ये चवर का काम हम लोग जल निकासी का काम सफलतापूर्वक किया और सरकार का लोग भी आकर के भ्रमण करके देखा, वो अपने इंजीनियर टेक्निकल पर्सन को लगा के देखा और किसानों के साथ मीटिंग हुई और लगा कि सफल होगा, तब वो यहाँ एक निर्णय लिया गया कमेटी में कि अब नरेगा का जो भी काम होगा उसमें 40% पैसा जो खर्चा होगा और ड्रेनेज के काम पे होगा, मतलब नाला निकासी होगा, जिससे मतलब किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। National resource management, microcredit, and income generation activities to improve the living conditions of the poor are some of the core objectives the organization is trying to achieve. पढ़ना क्या लाला, बात का जवाब बात से दिया है। तुम्हें बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि मेरी जैसी तुम्हारी भी एक लड़की है। यदि कोई मन चला तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा कह देता तो तुम क्या करते लाला? Through cultural programs and folk theatre, the Samiti aims to motivate people and create awareness about their rights. गाँव मेरा मंदिर है और ग्रामीण मेरा देवता, मैं देवता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। With the Samiti's support, women have formed self-help groups that work for income generation, healthcare, and education in the region. थोड़ा बचत करने का शुरुआत किए और बचत करके हम लोग बैंक से खाता खोले। अब हम लोग का खुद इससे हम लोग एक तो फायदा हुआ कि हम लोग एक अपना एक पूंजी हुआ, दूसरा का फायदा हुआ कि हम लोग मजबूत हुए इस कारण कि अपने अधिकार के विषय में जाने कि हम लोग का महिलाएं के अधिकार क्या है। तो ये होला से तो यह सुविधा है कि अब गरीब लोग के भी पानी चल जाले उन्हें कारी तो अपन कर के उन्हें निमन बजाय खटनी करके अपन खा सकता। जैसे हम लोग घर में रह करके दीवार में बंद थे, घुट घुट कर मर रहे थे, घूंघट के तले छिपे थी, तो हम लोग को ग्रुप चलाने से जहाँ तहाँ जाना और कुछ सीखना समझना हम लोग को आ गया। अब हम लोग मर्द से जैसे कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं। हम भी अपने आप को समझते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी किसी स्थान पर आ गए। Navjagriti's pioneering efforts could be a small step towards tackling the problem of flood in Bihar. What is required is a replication of their idea and efforts throughout the flood-affected areas. Such initiation, along with policy reforms by the government, would surely help mitigate floods and provide the means of survival for thousands whose livelihoods are frequently washed away by the ravaging floods.